Yeah, hi everyone. So, just a brief background about myself. Also, if you guys are comfortable in English or Hindi, any preference, I'll mix the two then. So I'm Vidushi Singh. I am AIR 13 this year. I am 22 years old, as ma'am said, and also this was my first attempt. Um, about myself is I've completed my schooling from Ayodhya, but I was born in the city of Jodhpur. My father is an Air Force veteran. He was stationed there. And when I was 4 years old, pura family, we shifted back to Faizabad, Ayodhya. Then I completed my schooling from there on. Pura plus two वहीं से हुआ, 10 years of schooling. And I scored decent marks to land myself in Shri Ram College of Commerce, economics honors. And I completed my graduation in 2021 and I was only 20 years old back then, तो eligibility थी नहीं एग्जाम में बैठने की. And also meanwhile ऐसा हुआ था कि March 2020 lockdown happened and I was in my 4th semester of college. So back then ऐसा thought था कि GRE दे के I'll go for masters abroad. But when lockdown happened, everything, we were all at ground zero. So when I came back home, I realized कि possibly we can look into UPSC preparation as well. पहले सोचा था कि masters के बाद देखेंगे, but then this thought also came in. So obviously online semesters, I hope I most of you would have seen online classes कैसे गए होंगे. तो बहुत टाइम रहता था पढ़ाई के लिए. So क्लासेस तो लगती नहीं थी कॉलेज की, सो आई यूज टू जस्ट स्टडी विद माई सेल्फ. ऐसे अपना NCERT से स्टार्ट किया 5th सेमेस्टर में. Then in my 6th semester, I read the standard books. Sara GS mostly I tried to cover it on my own. And by the time I graduated in 2021, I had covered substantial portions of GS on my own only. So I thought that ठीक है, classroom coaching की ज़रूरत नहीं है. I straight away delved into answer writing a bit. Ever since June 2021. So एक बार before I start the strategy and all, a few things that I want to say. थोड़ा warning समझ लो या disclaimer समझ लो, जो भी you guys want. So the thing is, I started my journey May 2020 में when I took this conscious decision कि नहीं, this is doable, I can probably do this. So पूरा एक महीना I researched about कि एग्ज़ाम क्या है, पैटर्न क्या है, and of course you guys are here, so you all know you have that guidance. मैंने सब टॉपर स्टॉक से देखा था हर चीज़. So I started out with Artika Shukla ma'am's topper stock, very famous topper stock. Most of you would have seen it. If you haven't, you should. It's a wonderful topper stock. And उनका पहला statement is this exam is 50% luck, 50% hard work, right? And उस टाइम पे even till 23rd May की morning तक I used to think 50% लक तो नहीं होता होगा. If you put in hard work 100% तो hard work का weightage ज़्यादा होना चाहिए. But honestly 1:30 PM के बाद से I realized नहीं, लक तो है, 50% is definitely there. Especially अगर आपका first attempt, second attempt, जो भी attempt है, early attempts हैं, फिर luck factor is definitely there. And luck, I think, is a very crude word to say. I am an economist, so I'll just try to break these things down. There are factors which are in your hands, which are endogenous. There are factors which are exogenous, which are not in your control. Examiner का mood कैसा है, copy check करते time. Interviewer का mood कैसा है. These things you cannot manage, right? But what you can do is you can put in the effort. वही है आपके हाथ में. Efforts is all that matters. And efforts maybe, it's not about daily कितने घंटे पढ़े. Of course, these things matter in the long run. But ultimately क्या है? This exam is 4 hours of prelims, 27 hours of mains and half an hour of interview. 31.5 years of 365 days. अगर आप ऐसे देखो, so you have to be at the top of your whatever performance जैसा भी है, absolute best in 31.5 hours में आपको दिखाना है हर हालत में. तो just making this process complicated, I was just talking to sir and ma'am as well कि बहुत ज़्यादा people have made this complicated. So जैसे कि आर्तिका शुक्ला मैम ने किया था, आई ऑल्सो ट्राई टू ब्रेक दिस डाउन फॉर यू. थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे. एंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉक, आई प्रॉब्ली फोकस मोर ऑन मेन्स because I believe that was my strong point. Prelims हो गया था first attempt में, सबका होता ही है barely. Of course some people are expert at it जिनका competitive background रहा है, but मेरे लिए this was the biggest exam of my life. इसके पहले मेरा सबसे बड़ा exam was my class 12th boards. So you can imagine कि क्या level था competitive exams का. Also, I just want to know, are all of you sitting for 2024? Is there anyone who's appearing for mains this year? ठीक है. And also, is there anyone from economics optional?
Okay, cool. So economics optional का I will not talk. So I'll mostly focus on mains and I'll let you know थोड़ा सा integrated prep के बारे में because I believe you guys are at that stage and also that is the foundational stage जो आपका integrated prep सब toppers बोलते हैं. What is that about? We'll talk about that. ठीक है. So I'll start with mains का prep only and then we can talk about interview थोड़ा सा and finally prelims का we'll talk towards the end because honestly I'll tell you why. My scores in prelims are 100 marks in GS1, which is decent, of course. 88 cutoff tha, 12 marks above cutoff is good enough. But CSAT mein my score is 70. So you guys can imagine, barely passing. And 17 days जब तक result नहीं आया था, I was very stressed. I thought that I will not make it. 17 days पढ़ाई भी नहीं की तो ऐसा इसलिए भी था मतलब CSAT का प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं था मेरा. So I'll not talk about CSAT. I'm no expert at it. थोड़ा सा प्रीलिम्स का कैसे प्रिपरेशन इन मॉक्स एंड ऑल विल टॉक लेटर स्टेज में बट मेजॉरिटी पार्ट आई थिंक आई टॉक अबाउट मेन्स any specific things that you guys want to talk about also अगर आपको बीच में कोई भी डाउट हो यू कैन सिंपली रेज योर हैंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस इट अगर थोड़ा मतलब डाइग्रेस भी कर रहा है करंट जो भी मैं बोल रही हूँ तो भी चलेगा यू कैन आस्क and also maximize the number of questions that you guys are asking because जो भी ये वीडियो लोग देखेंगे later stage में it will help them also because मेरे जैसे लोग जो घर पे बैठ के देखते थे उनके लिए काफ़ी helpful होता था right so we'll begin any basic question that you guys have थोड़ा मेरे बारे में अगर जानना हो और तो any question so we'll begin okay so I'll just simply tell my scores first prelims mains दोनों का and then we'll start with the timeline bit. Alright, so my scores in prelims are अच्छा meanwhile I'll just share my timeline only. तो क्योंकि जून 2021 के पहले I was done with NCERTs and standard books, first reading हो गया था तो बेसिकली जो आप फाउंडेशन कोर्स में पढ़ते हो वो चीज़ें मैंने खुद से कवर कर ली थी. उसके बाद जून 2021 टू दिसंबर 2021 पूरा 6 months वॉज माई इंटीग्रेटेड प्रेप. उसमें क्या था आई एनरोल्ड इन अ टेस्ट सीरीज. अगर आप ऑनलाइन मेरे टेस्ट कॉपीज देखोगे तो एक GS स्कोर के मिलेंगे एक विजन IS के मिलेंगे. GS स्कोर के टेस्ट थे वो एंड दोज टेस्ट वर नॉट टाइम्ड. बहुत सारा टाइम लगा के वो टेस्ट लिखा गया था तो दोज वर नॉट माई एक्चुअल आंसर्स इन द एग्जाम हॉल नॉट इवन क्लोज बट दैट फेज वॉज फाउंडेशनल. क्या होता है आंसर राइटिंग हाउ टू ब्रेक इट डाउन कैसे अटैम्प्ट करना है ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो बेसिक स्ट्रक्चर आप लिखते हो आंसर राइटिंग में वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो गई थी द 6 months. सो उसमें क्या था आई मेड मैक्रो प्लान्स. जून में हिस्ट्री कवर करना है जुलाई में पॉलिटी कवर करना है ऐसे ऐसे करके एंड आई रोट वीकली टेस्ट उसमें एंड हर हफ्ते सैटरडे संडे वर मेंट फॉर टेस्ट ओनली. सो दैट हैपेंड टिल December 2021 एंड देन January वॉज द मंथ ऑफ मेरा ट्रांजिशन मंथ. आई जस्ट क्विकली राइट इट डाउन. ठीक है. सो माई स्कोर्स आर 131 in essay, 448 total of GS and 276 of optional. It would not be visible but all in all my mark sheet is very balanced. I've not scored the highest in any of the papers. GS3 is suboptimal and economics optional के बाद भी 89 marks है. So I don't know what happened over there. Paper went well but जो भी marking scheme रहा हो. So 448 is still a decent score. इस साल काफ़ी सारे लोगों के 450 plus आए हैं
गुड इनफ स्कोर. एंड आप देखोगे इट्स वेरी वेरी बैलेंस्ड ओवरऑल, राइट. कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है. इंटरव्यू के बाद व्हेन आई केम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल, मतलब यूपीएससी भवन, माय मामा आस्क्ड मी कि कितने मार्क्स मिलेंगे. आई सेड 184. 184 ही मिले. तो वो एक इंट्यूशन डेवलप हो जाता है आपका, आप जब ये एग्जाम ज़्यादा टेस्ट दे दोगे उसके बाद. सो अबाउट माई टाइम लाइन आई वाज सेइंग, सो जून टू दिसंबर बेसिकली पूरा सिलेबस कवर किया. पिलर्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, गवर्नेंस, एनवायरमेंट एंड आपका एथिक्स, और जो भी सब्जेक्ट मिस हो गया. इकोनॉमिक्स आई डेंट स्टडी अलग से क्योंकि मेरा ऑप्शनल था, इवन दो माई स्कोर्स आर नॉट गुड, बट नेवरदलेस ऐसे करके दिसंबर तक फुल प्रॉपर टेस्ट लिखे वीकली. कुछ कुछ मिस भी हो गए थे जो रिडंडेंट लगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे. जैसे अगर आप ज़बरदस्ती फिजिकल ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस लिख रहे हो, 20 क्वेश्चंस नहीं आएंगे फिजिकल ज्योग्राफी के, सो यू कैन स्किप द पोर्शंस दैट यू थिंक कि यू कैन मैनेज लेटर. ये पूरा फाउंडेशनल प्रोसेस था. एंड जनवरी वॉज द मंथ ऑफ ट्रांजिशन. तो जनवरी 2022 ओमिक्रॉन वेव चल रहा था, मेरे घर में सबको कोविड हो गया था. एंड आई जस्ट थॉट कि आई वॉज द ओनली वन हु वाज नॉट इन्फेक्टेड. तो मैंने सोचा कि ठीक है, टाइम है अभी, एक प्रीलिम्स का ऑफलाइन मॉक देते हैं. उसके पहले मेरा प्लान था कि फरवरी तक आई कीप ऑन राइटिंग टेस्ट्स. तो आई गेव माई फर्स्ट मॉक ऑफलाइन OMR भरने के साथ. एंड ऑनेस्टली यू विल फील द डिफरेंस जब आप सेक्शनल मॉक देते हो ऑनलाइन वर्सेस जो आप OMR भर के देते हो. यू फील दैट प्रेशर जब आप OMR भरने लगते हो, राइट. तो इट्स वेरी डॉन्टिंग एंड हो जाती है गलती OMR भरते भरते. आई स्कोर्ड 79 इन दैट टेस्ट, विच इन हाइंडसाइड इज नॉट दैट टेरेबल, बट उस टाइम पे मुझे लगा था कि आई रियली नीड टू बक अप, बहुत ही ख़राब हो गया है. तो देन आई सॉर्ट ऑफ चेंज्ड माई स्ट्रैटेजी. दिस इज टू टेल यू दैट आप जो भी पहले सोच लेते हो दैट्स नॉट सेट इन स्टोन. आप अपने हिसाब से यू कैन मोल्ड वट एवर यू हैव सेट आउट फॉर योर सेल्फ एट द बिगिनिंग. ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं फरवरी तक आंसर राइटिंग ही करती रहूँ तो पॉसिबली आई वुड हैव नॉट डन जस्टिस टू द प्रीलिम्स प्रेप. तो जो 100 मार्क्स आए हैं वो 100 भी नहीं आते, वो भी बैरली पासिंग होते. थोड़ा कॉन्फिडेंस और लो हो जाता. तो इसीलिए आई जस्ट जनवरी के मंथ में आई थॉट कि नहीं, थोड़ा सा आई नीड टू शिफ्ट माई गियर्स, थोड़ा प्रीलिम्स की तरफ ज़्यादा करते हैं. एंड फरवरी में जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट एंड ऑल केम आउट, आई स्ट्रेट अवे जम्प्ड इनटू प्रीलिम्स प्रेप. अपना सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ आई स्टार्टेड राइटिंग फुल लेंथ मॉक्स पूरा ऑफ OMR भर के. एंड आई ऑनेस्टली आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट हेल्पफुल एक्सरसाइज. हो सके तो आप सेंटर पे भी जाके दो. आप लोग तो ऑफलाइन हो, बट टू ऑल दोज पीपल ऑल्सो हु विल वॉच दिस लेटर, अभ्यास, आई अपीयर्ड फॉर अभ्यास 2022 का. आई गेव 2 out of 3 टेस्ट्स एंड आई गॉट गुड स्कोर्स ऑल्सो. पहले वाले में तो बहुत ही अच्छे आ गए, 112 आ गए. ऐसे ही करे प्रीलिम्स तो आराम से हो जाएगा. बट द लास्ट अभ्यास दैट आई गेव आई स्कोर्ड 90. अगेन ड्रॉप हो गया अचानक से. बट दैट्स ऑल्सो यू शुडंट गेट डीमोटिवेटेड इतना ज़्यादा. अगर आपने सॉलिड प्रेपरेशन किया है प्रीलिम्स के लिए, 4-5 महीने लगाए हैं, हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ. अल्टीमेटली प्रीलिम्स का 50% इज योर माइंड गेम. आप सोच के जाओगे कि अरे बहुत डिफिकल्ट आएगा, नहीं हो पाएगा, तो दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस ऑल्सो. अगर इस साल की बात करें, प्रीलिम्स का पेपर सबने देखा होगा कैसा ही पेपर था वो. एंड अ लॉट ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स अपीयर्ड फॉर दिस पेपर. I think, and most of them have cleared it, by the way. I don't know क्या हुआ है ऐसा, प्रीलिम्स का कट ऑफ इतना लो कैसे हो गया है. बट माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, शी अपीयर्ड फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर, उसका हो गया है. बट 11:30 द पेपर एंडेड. 11:34 आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर एंड शी क्राइड स्ट्रेट फॉर 45 minutes. इतना ज़्यादा ख़राब पेपर था. एंड उसके बाद तो मैंने खुद भी पेपर नहीं देखा. मुझे लगा मैं नहीं देख सकती ये पेपर, अच्छी बात है, आई डोंट हैव टू अपीयर फॉर दिस अगैन. एंड CSAT का देख के तो और ज़्यादा ही लग गया. तो इसीलिए I'm saying कि prelims का honestly, considering the new type of question papers that have been coming in, I honestly don't know what to suggest. क्योंकि जो मैंने अपनी फ्रेंड को सजेस्ट किया था वो तो उसकी स्पॉन्टेनिटी थी दैट शी एक्चुअली क्लियर्ड. बट मेरा बताया हुआ करती तो नहीं हो पाता, क्योंकि आई वॉज द पर्सन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा. बट कंसिडरिंग द पेपर दैट केम इन, आप थोड़ा ऑप्टिमाइज करो अपना प्रेपरेशन. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अपने आप से देखने पड़ेंगे. बट ऑनेस्टली आई थिंक द मेंटर्स ओवर हियर विल गाइड यू फॉर दैट ऑल्सो, प्रीलिम्स का प्रेप. या सो वेयर वर वी, हाँ, सो आई स्टार्टेड माई प्रीलिम्स प्रेप इन फरवरी. उसके बाद फरवरी से लेके पूरा अभ्यास वगैरह दे के आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा. बट दी ओनली थिंग दैट आई मिस्ड आउट वॉज CSAT का बिल्कुल प्रेप नहीं किया. इनफैक्ट 2018 का पेपर लगा दिया था तो उसमें 150 मार्क्स आ गए. सो आई वाज लाइक कि अरे ये तो बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा. बट बहुत इजी, लास्ट ईयर का भी पेपर बहुत इजी नहीं था. मैथ्स वाज डिफिकल्ट लास्ट ईयर. इस साल के मैथ्स के हिसाब से कम थी, बट एनीवे डिफिकल्ट नेवरदलेस. सो हो गया फाइनली. एंड देन प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच के टाइम पे आई मेड अ लॉट ऑफ एरर्स, बट एट द एंड आई थिंक आई कुड मैनेज माई पेपर्स वेल, माई प्रेपरेशन वेल.
राइट. ये बस मैं आपको टाइमलाइन बता रही हूँ, भी थोड़ा और डिटेल में विल टॉक अबाउट आंसर राइटिंग एंड स्टफ. उसमें क्या हुआ था, आई विल जस्ट शेयर दिस बिकॉज आई एम शेयरिंग दिस विद एवरीवन दैट आई नो. आई एक्चुअली you know, a lot of time was wasted prelims और mains के बीच में. I effectively had 85 to 90 days जब रिजल्ट आया था. उसके बाद 22 जून को रिजल्ट आया था लास्ट ईयर एंड 16 सितंबर से मेंस था. तो उसमें क्या हुआ था, माई सिस्टर हैड टू लीव फॉर US. तो 27 जुलाई शी लेफ्ट. उसके 10 दिन पहले आई डिडंट स्टडी एनीथिंग बिकॉज माई सिस्टर वॉज लीविंग. उसके पहले वी हैड बिन टुगेदर 2.5 years कोविड के टाइम से ही. सो 10 दिन ऐसे चले गए एंड आफ्टर ड्रॉपिंग हर मुझे वायरल फीवर हो गया. मैं 4 दिन ऐसे बेड रिडन थी. तो फिर 14 days ऑल एंड ऑल ऐसे ही वेस्ट चले गए मेरे. तो जो पूरा एम्बिशियस प्लान बनाया था कि 16 टेस्ट लिखेंगे GS के एंड 12 टेस्ट ऑप्शनल के, सब कट डाउन हो गया. इफेक्टिवली आई कुड राइट 10 पेपर्स फॉर GS इन माई पूरा 3 months का टाइम. 4 टेस्ट फॉर ऑप्शनल, वेरी लेस. बट ऑप्शनल का बिकॉज आई जस्ट से दिस, बाद में लोगों को हेल्प आएगा इकोनॉमिक्स के, कि ऑप्शनल में मैंने किया था कि PYQs पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था. तो आई थिंक दैट इज़ वाई आई कुड स्कोर वेल इनफ टू गेट थ्रू.